I have always been believing in Sai Baba since 2008 probably, and I never looked around anything other than Sai Baba. So when I connect the dots in the past, now I see how I was always connected to Guruji in a way, because I only got to know Sai Baba um, after 2008, but the kind of risks I have taken in life, the things I went through, I should not be alive by now. I'm not talking about drugs or crime, but um, the kind of risk in terms of I was super rash driver and things like that, that I used to take 20 risks every day. And now I remember that my mom gave me a locket of Om when I was in 5th standard. And since that time until few years back, I never took it off my neck. So I feel that Guruji was always with me. And even before I came to temple for the first time, somehow, because I did not know anything about Guruji, I did not know that he, whenever you see a butterfly or more, you connect that with Guruji. But few days before that, when I was in Sai Baba temple, somehow मेरे में एक इच्छा हुई कि मैं यहाँ साईं बाबा के मंदिर से एक मोर का पंख उठा लूं, और मैंने उस मोर के पंख को उठा के गाड़ी में रख लिया. और उसके बाद अचानक से few weeks later I was connected to, like, brought into the temple by one of our friends. So that is a journey itself, क्योंकि first time when we came was 13th of Feb, and I think Sagar uncle did the bhajans that day. We came, we sat outside, we didn't even come inside because our friends brought us. Even though मुझे तो शायद आना भी नहीं था, Deepti, my wife, she was coming, so I thought, why should I stay alone at home? मैं भी चलता हूँ. So before that, everybody used to put pictures of Guruji on their DPs, our lot of family friends and all, but we never paid attention. सबके मन में जो skepticism होता है, doubt होती है, क्यों जो बंदा कभी जीते थे अब तो वो हैं भी नहीं, why everybody is following those same kind of questions, but all those questions were answered through satsangs. We listened to lot of satsangs after we came for the first time, but when we came first time, that itself, जो friends हमारे घर आ रहे थे, हमने उनके लिए ब्रेड पकोड़े बनाने थे, लेकिन वो लेट आए तो हम ब्रेड पकोड़े नहीं बना पाए क्योंकि मंदिर का टाइम हो गया था. एंड जैसे अंकल ने बोला भी यहाँ कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते, एवरीथिंग इज बाय रीजन. तो व्हेन वी केम फॉर द फर्स्ट टाइम, लंगर वो स्नैक प्रसाद में ब्रेड पकोड़े थे, एंड वी वर सो हैप्पी कि चलो घर में नहीं बने, यहाँ पे मिल गए. उसके बाद एक्चुअली 13th फेब से कुछ वीक पहले ही, एंड डे आफ्टर आई स्टेप्ड इन टेंपल, somehow miracle started happening. कुछ वीक पहले एक्चुअली मैं कुछ आई एम ऑन H1, तो मैं जिस जॉब में हूँ, मेरी मैनेजर, शी वाज somehow giving me hard time. Whatever I do, even though I won't say सब गुरु जी की कृपा ही है, I was almost the best, but she never recognized. She would do favorism and all those things in front of everybody, but we could not do anything. तो उससे कुछ एक महीना पहले दूसरी टीम की एक colleague friend, she asked me, why don't you join our team? So I said, I am here in a senior manager position. Why would I burn my bridges and come to your team on the same position? So she said, that makes sense. तो हमने वहीं पे ड्रॉप कर दी बात. उसने कहा हमारी टीम में बहुत पोजीशंस ओपन है. हमने ड्रॉप कर दी बात मजाक मजाक में. 13th फेब को मैं आया, 15th फेब को उसका मेरे को कॉल आता है, कहती है कि we have created a special position which can fit your role and our role, which is a associate director technical position, and I have no experience of their team, nothing. So she said, will you be interested? मैंने कहा sure, मेरे को प्रोफाइल भेजो. तो she sent me the profile. और बड़ी कंपनीज में usually it takes time to go through things. तो 15th फेब को उसने मुझे बताया, 18th फेब ऑलमोस्ट प्रोफाइल क्रिएट हुई, 20th 2-3 दिन में मैंने उनके मैनेजर से बात की कि आई एम इंटरेस्टेड.
They said okay. Within 1 week, interview was scheduled. और मुझे नहीं पता था मेरी मैनेजर मुझे इतनी आसानी से निकलने देगी उस जॉब से, बिकॉज आई वॉज द की रिसोर्स. बट मैंने प्रोफाइल भर दी और क्लिक करने से पहले बस उसको कॉल किया कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल. और वो सरप्राइजिंगली कहती है कि या डेफिनेटली ट्राई फॉर समथिंग न्यू. और मैंने क्लिक दबा दिया और थर्सडे था वो और सबमिट हुआ. मुझे उसका अभी कनेक्ट स्टार्ट में कर नहीं पा रहा था. उसने हाँ कैसे किया. तो मैं आई आज दीप्ति somehow she is I think moving out of the company. I'm feeling that otherwise she wouldn't let me go. गुरुजी ने हर चीज को ऐसे अरेंज करते हैं क्योंकि अगर वो इसी कंपनी में रहती she would not have let me go. बट उन्होंने उसको भी कंपनी से दूसरी पोजीशन में भेजा so that she cannot create obstructions for me. और उसके एक वीक में मेरा इंटरव्यू हुआ. आफ्टर 2 वीक्स बैसाखी के दिन मेरे को कंफर्मेशन आया कि दैट यू आर इन. सब कुछ somehow मंडेज और थर्सडे को होता था. तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि चलो अब थर्सडे बीत गया तो फ्राइडे सैटरडे संडे बोल जाओ मंडे ही होगा कुछ. 4 दिन बीच में जो भी है और दिन कुछ होता ही नहीं था यूजुअली. एंड वी वर सो ब्लेस्ड क्योंकि एवरीथिंग विच वी वांटेड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, द थिंग्स आई वांटेड टू लर्न, दैट इज अ प्रोफेशनल जर्नी. वी ऑलवेज लुक फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रोथ. बट गुरुजी के आने के बाद स्पिरिचुअल जर्नी में definitely miracles happen every day. First of all, I'm so grateful that we were connected to Guruji. Somehow we are so grateful to that friend who brought us in, and to the entire satsang sangat who embraced us so well. Almost 3 month हुए अभी मंदिर में आते हुए, लेकिन सब में एक जो अपनापन दिखता है, everybody is so nice. वो you can't find it everywhere. और 2 छोटे सत्संग में शेयर करता हूँ. Before I forget, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम घर गए, लंगर प्रसाद सबको आने के बाद लगता है लंगर प्रसाद थोड़ा ज्यादा ले जाऊं, घर ले जाऊं. तो वी टुक एक्स्ट्रा 2 बॉक्सेस एंड उसमें एक खीर प्रसाद था, उसके अंदर केवड़े की स्मेल थी और दैट वाज गुड. तो जब हम घर गए हमने उस बॉक्सेस को फ्रिज में रख दिया और हमारे को जब भी हम किचन में जाए इतनी तेज गुलाब की खुशबू आए. और हमारा वो जो स्केप्टिक दिमाग होता है रीजंस ढूंढने की कोशिश करता है क्यों आ रही है, हमें नहीं पता था. हमने कहा शायद उस खीर में से आ रही होगी. वो खीर की इतनी छोटी सी डब्बी फ्रिज में पड़ी हुई है 2 दिन 3 दिन, उसकी खुशबू बाहर हम सोच रहे हैं कि उससे आ रही है कि जब तक प्रसाद खत्म नहीं होगा तब तक खीर वो गुलाबों की खुशबू आती रहेगी. बट देन वी टॉक टू समबडी एंड दे सेड गुरुजी इज शोइंग यू His presence in your homes, you are blessed. So then we are connected to it. फिर हम कहाँ बाहर जाते थे, कब कहाँ अचानक से गुलाब की खुशबू आ जाए किसी को नहीं पता. तो those kind of experiences. फिर गुरुजी एक बार मेरे सपने में आए. It was like a theater kind of setup in which I was sitting in the front second row. गुरुजी सामने से आए, वो येलो चोले में थे, if I'm not forgetting, गुरुजी माफ करना. Then वो बस आगे आए, सब बैठे हुए थे. वो साइड से आए, सेकंड रो के बगल में खड़े हुए एंड ही काइंड ऑफ आई फेल्ट ही इज वेटिंग फॉर मी. आई वेंट, मैंने उनके पैर दबाए थोड़ी देर और पैर छुए और वापसी आके सीट पे बैठ गया अपनी. और फिर वो टूट गया सपना. पर आई फेल्ट ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ब्लेस किया है. वन मोर सत्संग विच वाज, मेरे को एक बार सपने में आया कि मैं लाइट ऑफ डिविनिटी बुक ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रही है. तो मैंने कहा चलो कोई पीडीएफ ही भेज दे. तो मैंने इनफैक्ट अपने फोन पे ढूंढा तो उसका पीडीएफ मिल गया, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा था. फिर मैंने अपने लैपटॉप पे ढूंढा, जबकि सेम चीज सर्च कर रहा हूँ, लैपटॉप पे मिल ही नहीं रही है कि मैं डाउनलोड कर पाऊँ. तो मैंने कहा कहाँ से करूँ फिर मैं, क्योंकि मुझे प्रिंट भी करनी है. वो फिर दिन मैंने कहा चलो बाद में देखूंगा. फिर मुझे सपना आया, उसके एक्चुअली इसके बाद आया था सपना कि मैं बुक ढूंढ रहा हूँ. मुझे सपना आया कि मैं यही मंदिर में पूछ रहा हूँ किसी बुक का, और सीमा आंटी मुझे कहती है मैं दूंगी तुझे बुक. मैं उसकी अगली बार मंदिर आया तो सेकंड राउंड ऑफ लंगर की सेवा के लिए मैं बाहर इंतजार कर रहा था. तो सीमा आंटी, यू नो, शी इज ऑलवेज मूविंग अराउंड, इट्स हार्ड टू कैच हर, बट समहाउ शी केम एंड स्टूड नेक्स्ट टू मी. वो मेरे पास में खड़ी हुई, मैंने कहा पूछूं क्या. जब तक मैंने ये सोचा पूछूं क्या, वो चली गई. फिर 2 सेकंड बताए, फिर सामने पास आके खड़ी हो गई थी सीमा आंटी. तो मैंने आंटी को, आंटी मैं लाइट ऑफ डिविनिटी बुक कहाँ से मिलेंगी. तो सेम वर्ड्स इन सेम टोन सीमा आंटी सेड मैं दूंगी तुम्हें. एंड देन शी गिव मी द लाइट ऑफ डिविनिटी बुक एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अगेन नो कोइंसिडेंस.
and I'll just check the time. Yeah, led one more satsang which happened yesterday. It was so amazing. I felt so blessed because few weeks back somehow Vinu auntie just told me one time that Kapil uncle आज भोग आप लगा दो. तो I felt blessed कि चलो गुरुजी ने जिंदगी में एक बार मौका दिया मुझे कि मैं भोग लगा सकूं, and that is enough for me. I am happy. That was done. But yesterday somehow, actually day before yesterday, what happened? I went to the doctor, and I had some kind of thing in the back. So doctor told me you have to go to urgent care and get it operated immediately. तो उन्होंने मुझे नंबर दिया ये वो. तो मैंने कहा आज तो महासमाधि दिवस है, तो वो तो मिस हो नहीं सकता. तो मैंने कहा कि ठीक है. मैंने कहा गुरुजी हाथ संभाल लो. माई बैक वॉज काइंड ऑफ सोलन, पर मैं कल कराऊंगा, जो होगा देखा जाएगा. तो आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू अर्जेंट केयर. बट करीबन शाम को सीमा आंटी का मैसेज आता है, कपिल अंकल 6:45 पे यहाँ पे आ जाना भोग के लिए. मैंने कहा ये कहाँ से आ गया अचानक. फिर मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ जाऊंगा. मैं 6 बजे, मैंने कहा मैं 6 बजे आ जाऊंगा. आंटी ने कहा 5:30 आ जाओ, थोड़ी सेवा भी कर लेना. तो मैं 5:45 आया, सेवा हुई, थोड़ा बहुत बाहर हम सेवा कर रहे थे. तो आंटी ने मुझसे पूछा आप बाहर की आप भोग के लिए रेडी हो ना. मैंने कहा हाँ. तो आंटी ने कहा आपकी वाइफ कहाँ है. तो मैंने कहा वो थोड़ी देर बाद आएगी. तो आंटी ने कहा आप अकेले लगाओगे. मैंने कहा हाँ. कहती ठीक है. तो आंटी अंदर गई. आंटी ने वीनू आंटी और रश्मि आंटी को कहा कि कपिल अंकल भोग लगाएंगे आज. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा चलो मैं इंतजार कर रहा था. फिर थोड़ी देर बाद आंटी आती हैं बाहर. अभी भोग का टाइम नहीं हुआ है. आंटी कहती है आपका नाम कपिल कोहली है ना. मैंने कहा नहीं कपिल सचदेवा है. तो कहती हैं आपकी वाइफ का नाम क्या है. मैंने कहा दीप्ति. तो कहती हैं कुछ कोरिलेटिंग है. ठीक है आप ही हो गए वो, कुछ मेरे को शायद लास्ट नेम में वो होगी, आप भोग लगा देना. मैंने कहा ठीक है. फिर मैं वेट कर रहा था, भोग की तैयार नहीं. मैं फिर खड़ा हुआ, मैं बाहर खड़ा था. मैं फिर आंटी मेरे पास आई, कहती हैं कि अंकल सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, भोग तो नहीं लगा ना. मैंने कहा नहीं. तो आंटी ने कहा कि एक्चुअली मैंने किसी और को कमिट किया है, कपिल कोहली अंकल को, वो भोग लगाएंगे अगर आप ना बुरा ना मानो. मैंने कहा जो गुरु जी की इच्छा, कोई बात नहीं. मैंने कहा अब मेरे को 2 बार आंटी ने कह दिया, मैं किचन में नहीं जाता, थोड़ी एम्बेरसमेंट होगी. तो मैं चुपचाप आके यहाँ बैठ गया सामने. तो मैंने कहा कि अब तो जैसे गुरुजी की इच्छा, पर डिसअपॉइंटमेंट तो होती है. मैंने कहा मौका दिया गुरुजी ने, फिर ले लिया, कोई रीजन होगा छोड़ो. फिर मैं बैठ के ध्यान लगा रहा था. तब तक आई फेल्ट अ टैप ऑन द शोल्डर. रश्मि आंटी सेड कपिल अंकल. मैं आया तो कहती भोग की थाली उन्होंने मेरे आगे रखी. मैंने कहा आई शुड बी ट्रांसपेरेंट. मुझे चीटिंग से महसूस हुई. मैंने वीनू आंटी को कहा आंटी आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है. सीमा आंटी ने मुझे कहा था कोई कपिल कोहली है जिनके साथ उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, तो मे भी उन्होंने भोग लगाना है. तो वीनू आंटी ने कहा अभी तो कोई नहीं आया, अब आप ही भोग लगाओ. एंड आई वाज सो लकी, आई फेल्ट ब्लेस्ड कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन महासमाधि डे फॉर समहाउ. हम गुरुजी से पूछते हैं गुरुजी गिव अस सम हिंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस. गुरुजी ने इन 3 महीनों में इतनी एक्सेप्टेंस दिखाई है. वी फील सो ब्लेस्ड. आवर एंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड. whoever we connect to. In fact, मेरी एक फ्रेंड, she is in India, colleague, उसकी मुझे कुछ दिन पहले कहती है कि मेरे टांग में बहुत दर्द है, ये है वो है. मेरे को डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो कहते हैं कि वो आर्थराइटिस है. बस उन्होंने दूसरा टेस्ट करना है कि आर्थराइटिस कौन सी कंडीशन का है. मेरे को इतना बुरा लगा. वो 28 साल की बच्ची है, उसकी अभी शादी होने वाली है. मुझे लगा यार जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं रह गया. वो कैसे, उसकी अभी फादर की भी एक्सपायरी हुए थे कुछ 1 साल पहले. शी इज द ओनली ब्रेड अर्नर. मेरे मन से निकला, मैंने कहा गुरुजी ऐसे नहीं होना चाहिए यार. मैंने उसको कहा तेरे लिए मैं अरदास करूंगा, चिंता मत कर. अब मैंने उसको नहीं बताया अभी, पर मैंने अरदास की थी उसके लिए. और वो 2 दिन बाद आती है, कहती है आई टुक ए सेकेंड ओपिनियन, और उस डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मसल टेंशन है और थोड़ी एक्सरसाइज करो. और उसने मुझे जो एक्सरसाइजेज बताई, आई एम फीलिंग मच बेटर, और आर्थराइटिस है ही नहीं. आई वाज सो अमेज्ड कि गुरुजी सिर्फ हमारा नहीं, जिसके लिए हम अरदास करते हैं उसके लिए इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर देते हैं. एंड वी आर थैंकफुल टू एवरीवन टू लेट अस बी पार्ट ऑफ दिस संगत. एंड थैंक यू गुरुजी. शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.